Hello my dear children, welcome to the class, and today we will discuss the treatment of goodwill at the time of admission of the partner. So now first of all we will discuss what is the need to make the treatment of goodwill at the time of admission. I will explain you this concept with the help of one example. For example, A and B are two partners and they are sharing profits in the ratio of 2:1. Now they are admitting C as new partner. Okay. After the date of admission, he will share the profit of A and B's firm after the date of as and when he will become the partner. Now this existing firm, this is the firm in which initially A and B were partner. ये वो firm है जिसमें A और B starting में partner थे. अब C जब इसमें admit होगा, then as and when he will become the partner, now he will be eligible to share the profit. At this time, at this point of time, this firm is existing due to the effort of A and B only. इस firm में efforts किसके लगे हुए हैं? सिर्फ A और B के. Now, at this date, C is becoming the partner. अब इस डेट पर C इसका पार्टनर बन गया. अब इसके बाद से जो भी प्रॉफिट अर्न होगा, ठीक है, द फर्म whatever be the profit the firm will earn after the date of C's admission, now the profit will be shared by A, B and C, and in this profit all the efforts put it by A and B before the admission. ये जो प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं आफ्टर C's admission also, in this profit the contribution put it by A and B into the firm are here. So C को क्या हुआ कि C ने एडमिशन के बाद विदाउट एनी एफर्ट्स नाउ ही विल बी एलिजिबल टू शेयर द प्रॉफिट. सो ही विल कॉम्पनसेट टू A and B in the form of goodwill. Okay, at this point of time we will value the value of goodwill, we will revalue the value of goodwill. Okay, and this compensation will be given by C to A and B in sacrificing ratio. Okay, जितना जितना ये दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे इन फेवर ऑफ C, the concept of new profit sharing ratio and sacrificing ratio we have discussed earlier. So C will give this compensation in the form of goodwill to A and B in sacrificing ratio. And why he is giving the compensation? Because now he will share the profit earned by the firm in which before his admission all efforts are done by A and B only. He has not done anything for the existence of firm before his admission. And as and when he become the partner, now he will share the profit. So he will give the compensation in the form of goodwill. So that's why we calculate the value of goodwill on the date of admission, and this treatment will be made by, there will be known as the treatment of goodwill at the time of admission. Okay beta, now we will discuss how we will make the treatment. Okay, students will confuse in the treatment of goodwill because we are having existing goodwill in the balance sheet. Okay, the value which is existing in the balance sheet, or the balance sheet is showing the value of goodwill in asset side at the time of admission, is known as existing goodwill. And in the same question, the value of goodwill is also given in the adjustments, and this value of goodwill is known as revalued value of goodwill at the time of admission. So students will confused how to make the treatment of, अगर इसका जो ट्रीटमेंट करना है कई बारी वो इस गुडविल को लेकर कर देते हैं, और जो इसका ट्रीटमेंट करना है कई बारी वो इस गुडविल को लेकर कर देते हैं. सो यू विल बी डिफरेंट, यू विल हैव क्लियर कॉन्सेप्ट इन योर माइंड देन व्हाट इज दिस गुडविल एंड व्हाट इज दिस गुडविल. ओके, सो एग्जिस्टिंग गुडविल इज द वैल्यू ऑफ गुडविल बिफोर हिज एडमिशन. उसके एडमिशन से पहले हमने जो गुडविल की वैल्यू की हुई है फर्म में, वो आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल है. एंड
the value of goodwill which we have revalued or we have make the valuation of goodwill at the time of admission. जब हम उसको एडमिट कर रहे हैं उस टाइम पर जो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे गुडविल की, वो आपकी एडजस्टमेंट्स में दी होगी. कई बारी आपको कैलकुलेट करके दी होगी और कई बारी आपको कैलकुलेट करनी होगी. ओके बेटा, तो जब ये गुडविल आपकी एडमिशन से पहले है तो इस गुडविल के ट्रीटमेंट के साथ न्यू पार्टनर का कोई भी लेना देना नहीं होगा. सो इन द ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल देयर विल बी नो कैलकुलेशन, नो डेबिट एंड क्रेडिट फॉर न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, एंड this goodwill is calculated after the admission. So in this treatment we will take the new partners capital account also. अगर आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलेंगे तो आपको कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगी. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द ट्रीटमेंट. दिस इज योर एग्जिस्टिंग गुडविल. सो दिस गुडविल विल बी रिटन ऑफ बिफोर एट द टाइम ऑफ एडमिशन. सॉरी, बिफोर कह रही हूं मैं, एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम इस गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे, यानी कि बुक्स में से हटा देंगे, क्योंकि नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर इज चेंजिंग. नाउ वी आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द न्यू रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम बिटवीन द पार्टनर्स. तो ये जो गुडविल है ये आपकी बुक्स में से रिमूव हो जाएगी. एंड फॉर राइटिंग ऑफ दिस गुडविल नाउ वी विल मेक द एंट्री ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू goodwill account. We are writing off the goodwill. So goodwill is your asset and decrease in asset will be credit, and old partners capital account will be debit, and this goodwill will be writing off V in old ratio. हम कौन सी रेशियो में इसको राइट ऑफ करेंगे? ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये आपकी एडमिशन से पहले का ट्रीटमेंट, एडमिशन से पहले की वैल्यू है, एग्जिस्टिंग गुडविल है. ओके, दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर एग्जिस्टिंग गुडविल. नाउ वी विल learn how to make the treatment of goodwill at the time of admission, and for the value of goodwill which we have calculated at the time of admission. Admission के टाइम पर जो हमने गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करके निकाली है, अब हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे. एंड फॉर दिस ट्रीटमेंट नाउ वी आर हैविंग 3 cases. If the new partner paid the amount of goodwill privately, अगर उसने दोनों पार्टनर्स के साथ में एडजस्टमेंट करके आउटसाइड द बिजनेस आपस में सेटलमेंट कर लिया और गुडविल को प्राइवेटली पे कर दिया कि ठीक है, इतना अमाउंट मैं आपको दे रहा हूँ, इतना अमाउंट मैं आपको दे रहा हूँ. बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, ना तो बिजनेस में कुछ भी रिसीव हुआ और ना ही बिजनेस से कुछ भी बाहर गया. तो अगर उसने प्राइवेटली पे किया है एंड बिजनेस इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजेक्शन, देन देयर विल बी नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस. ओके, नाउ इफ ही पेड द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, अगर वो गुडविल का जो अमाउंट है, जो कॉम्पनसेशन है, वो कैश में पे कर रहा है, तो कैसे होगा? अगर वो कैश में पे कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल ब्रिंग द कैश इनटू द बिजनेस, देन द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. ओके, अभी वो गुडविल का जो अमाउंट है लेकर आया, ये तो आपने एंट्रीज 11th क्लास में भी पढ़ी है. कैश इज कमिंग इन, तो कैश अकाउंट डेबिट, और वो क्या लेकर आया है? टू प्रीमियम फॉर गुडविल. नाउ दिस प्रीमियम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners capital account. Why I am writing here sacrificing partners? I am not writing here old partners, because in old partners there may be one partner who is not sacrificing. All the portion which we are giving to the new partner may be sacrificed by only one partner. हो सकता है कि जो भी न्यू पार्टनर हम एडमिट कर रहे हैं उसके फेवर में जो हम शेयर दे रहे हैं वो सिर्फ एक ही पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया हो. तो जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया ही नहीं है, देन व्हाई ही विल गेट द कॉम्पनसेशन फ्रॉम द न्यू पार्टनर? ओके, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ओनली, बिकॉज जो सैक्रिफाइस करेगा वही गुडविल का शेयर न्यू पार्टनर से लेगा. So this is the treatment when the new partner brings the amount of goodwill in cash. Now, if the new partner is not able to bring the amount of goodwill in cash, अगर उसके पास कैश में गुडविल लाने के लिए है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे?
ऐसा तो नहीं है कि हम गुडविल का कॉम्पनसेशन उसके ऊपर छोड़ देंगे तो फिर हम उसके करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे। तो क्या एंट्री करेंगे हम, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट सॉरी, ओके, उसके करंट अकाउंट में से हम उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर? सो दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर द गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू बी मेड। एंड इन तीनों केसेस में अगर मान लीजिए इसको हटा दें, अगर हम इन दोनों केसेस में हम अगर जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो गुडविल को विड्रॉ करके ले जाना चाहे, अगर वो अपना गुडविल का शेयर बिजनेस से विड्रॉ करना चाहे, अभी तो उनकी कैपिटल में ऐड हो गया, ओके, अगर वो विड्रॉ करते हैं तो इन दोनों केसेस में आपकी सेम एंट्री होगी और वो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि वो अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं एज पर द गुडविल। ओके बेटा, तो तीनों केसेस आपको क्लियर है। फर्स्ट केस आपका था जब वो गुडविल बिजनेस में लाया ही नहीं, उसने प्राइवेटली सेटलमेंट कर लिया आपस में एंड ही पेड द अमाउंट आउटसाइड द बिजनेस, सो देयर विल बी नो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इन सेकेंड केस इफ ही ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, अगर वो कैश में गुडविल लेकर आया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द एंट्री फॉर ब्रिंगिंग द कैश, then we will distribute the amount of premium for goodwill in the sacrificing partners in sacrificing ratio, and sacrificing ratio is old share minus new share. Okay, if he is not able to bring the amount in cash, not in cash, अगर वो कैश में नहीं लाया तो हम गुडविल उसके करंट अकाउंट से लेकर पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। ओके, और इन्हीं केसेस में अगर वो विड्रॉ करते हैं गुडविल, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं, इफ दे वांट टू विड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल देन द एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर वो फुल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं तो फुल अमाउंट से एंट्री होगी, अगर वो हाफ विड्रॉ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 25,000 की गुडविल वो लेकर आया है और 12,500 एक को मिला, 12,500 एक को मिला, नाउ दे वांट टू विड्रॉ द अमाउंट हाफ अमाउंट, ओके, तो 12,500 का हाफ कितना हुआ, 6,250, और अगर वो पूरा अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं तो 12,500, तो जितना अमाउंट वो विड्रॉ करेंगे उतने अमाउंट से यहाँ पर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज कैश इज गोइंग आउट एंड पार्टनर्स कैपिटल इज डिक्रीजिंग। ओके बेटा, सो दिस इज ऑल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है, कई बार आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कि ए एंड बी आर पार्टनर, दे एडमिट सी एंड सी give the amount of goodwill privately, then what will be the entry? The answer is very simple, there will be no entry. Okay, and for this case question किस तरीके से बनेगा, A and B are partners, they are admitting C, the old ratio is 2:1 and they are admitting C for the 1/4 share. He is bringing 50,000 rupees for his capital and 30,000 rupees for his goodwill. तो यहाँ पर आपने पहले कैश लाने की एंट्री की है, तो आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू कैपिटल। आप दोनों एंट्रीज अलग अलग भी कर सकते हैं। कैपिटल लेकर आया 50,000, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000, और उन दोनों एंट्रीज को हम कंबाइन भी कर सकते हैं। आपने कंपाउंड एंट्रीज पढ़ी है ना, तो क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट 80,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 टू कैपिटल 50,000. Okay, and in the next entry we will distribute the amount of 30,000 rupees as premium for goodwill between the partners in sacrificing ratio. Okay, अब कई बारी बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चन में कई बारी आपको वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म गिवन होता है, कई बारी दिया होता है कि सी इज ब्रिंगिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल ₹30,000। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बारी जब फुल अमाउंट दिया होता है वो उसी को सी का पोर्शन लेकर डेबिट और क्रेडिट कर देते हैं, लेकिन आपने क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है कि ये पूरी फर्म की गुडविल दी है या उसका ही शेयर दिया है। अगर उसका शेयर दिया है तो प्रीमियम फॉर गुडविल में वो अमाउंट लिखेंगे। अगर आपको पूरी फर्म की गुडविल दी है, तो अगर आपको पूरी फर्म की गुडविल दी है तो आप इस अमाउंट को सी के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 40,000 इज द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म
एंड सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, तो सी का शेयर कितना हुआ 10,000, वो पूरी फर्म की गुडविल थोड़ी ना लाएगा, वो तो सिर्फ अपनी गुडविल लेकर आएगा। तो कितनी गुडविल लेकर आएगा वो 10,000। सो यू नीड टू रीड आउट द क्वेश्चन वेरी केयरफुली वेदर द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन और द गुडविल ऑफ द फर्म इज गिवन। Okay beta, so this is the whole concept regarding the treatment of goodwill at the time of admission of the partner. So now open your book and read out the questions and start to form the journal entries in the treatment of goodwill. Okay beta, so फिर मिलते हैं next concept के साथ. Till then, bye bye.